السلام علیکم میں احمد مشتاق کریٹر آف حلیمہ فاؤنڈیشن کشمیر مائی ڈیئر فرینڈس آج ونو بہ تۄہہِ تِم ژور نسخہٕ یِمو سۭتۍ تُہنٛز زندگی آسان بنہِ that makes your life comfortable and I hope so if you follow such four things آپ اپنی زندگی آرام سے گزارو گے وداؤٹ اینی ڈپریشن اینڈ وداؤٹ اینی اینگزائٹی جو ہمارے کشمیر میں سب سے زیادہ جو میڈیسن ہے یہ زن ساروی کھۄتہٕ زیادہ دوا چھُ سانہِ کٔشیٖرِ منٛز چلان سُہ چھُ چلان میادُک تہٕ اینگزائٹی ہُنٛد یہ کم کرنہٕ خٲطرٕ ایز پر دا ریسرچ آف حلیمہ فاؤنڈیشن کشمیر چار چیزیں ہیں تم ژور چیز یم زن اس دنیاہس یم ییٚتہِ کٔشیٖرِ منٛز یا دنیاہس منٛز کرو أسۍ کتھ پرٹیکولرلی آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دس کشمیر ویلی کم ژور چیز یا میری یہ ایکسپیرینس کے حساب سے میں اپنی ینگ جنریشنز کو یہ بتا رہا ہوں اگر وہ یہ چار چیزیں فالو کریں گے مجھ سے لکھ لو آپ زندگی میں کبھی ڈپریشن فیس نہیں کرو گے اور آپ آرام سے سو جاؤ گے جب بھی سونا ہو تب نیند آئے گی لیکن زیادہ سونا نہیں ہے کیونکہ یہ زمانہ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا آپ کو ہارڈ ورک بھی کرنا ہے سمارٹ ورک بھی کرنا ہے اور وہ کرنا ہے جو سب کو آتا ہے وہ نہیں کرنا ہے جو کسی کو نہیں آتا ہے اس کے پیچھے لگنا ہے یہ میرا پہلا نسخہ ہے اگر آپ سکسس چاہتے ہو زندگی میں اگر آپ کہیں پہ پہنچ جانا چاہتے ہو مائی ڈیئر اور میرے جو چار اس کے فرسٹ جو میں نے پوائنٹ اس میں نوٹ کیا ہے ڈونٹ میک فرینڈس دوست مت بناؤ سب سے زندگی میں وجہ جو ہے ڈپریشن کا ساری کھۄتہٕ زیادہ بوڑ وجہ اس دنیا میں وچھنے ایز پر دا ریسرچ فرینڈس کیونکہ فرینڈس بنانا غلط نہیں ہے اگر آپ 40-50 سال پیچھے جاؤ گے تب فرینڈس تھے آج وون میں پٔتمہِ لٹہِ ویڈیوس منٛز یوٗتاہ ماچھ آسہِ تیوٗتاہ لڑنو پتہ کیونکہ ییٖتیاہ تُہۍ فرینڈ بنٲیِو تیوٗت یہِ زٲنۍ زِ نہٕ فرینڈ چھُنہٕ کٕہٕنۍ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چھُ پننہِ مقصد خٲطرٕ پٔتۍ کِنۍ آسان مقصد ورٲے میلُن چھُ أزکِس اِراہس منٛز ڈیڈلی امپاسبل جہاں تک اور میری بھی ایکسپیرینس ہے جہاں تک میں پہنچا ہوں یہاں تک سب سے زیادہ جو انسان زنگ چکڑان وہ آپ کا دوست نکالتا ہے جس سے 2 راتس نرجی تھما بیٹھ وہی آپ کو ڈپریشن کی وجہ بن جاتا ہے وہی آپ کو اینگزائٹی کی وجہ بن جاتا ہے اور خاص کر وہی دوست آپ کو زندگی میں ناکامیابی کی وجہ بن جاتا ہے مائی ڈیئر سو میں اپنی ینگ جنریشن کو کہہ رہا ہوں ایز پاسبل ایز جتنا ہو سکے فرینڈشپ مت کریے فرینڈس مت بنائیے کیونکہ آپ آنکھیں بند کر کے دیکھ لو جو بھی آپ کو ڈپریشن ہوتا ہے شام کو سوتے وقت اٹھنے کے ٹائم پہ دن میں وہ آپ کو صرف ایک دوست دیتا ہے آج کل کے ایرا میں پنن چن سپورٹ کران کہیں ایکسپٹ پیرنٹس فادر اینڈ مدر آپ کو تو پتا ہے یہ جو چینل میں نے سٹارٹ کی ہے حلیمہ فاؤنڈیشن کشمیر یہ صرف اس کا جو مقصد اور مدعا ہے وہ پیرنٹل کیئر اینڈ پراؤڈ ہے وہ شاید آپ پیچھے میرے دیکھ رہے ہو ایکسپٹ پیرنٹس کسی انسان پہ کوئی ایکسپیکٹیشن یا کسی کو دوست مت بنائیے میں آج کل کے فادرز اور مدرس کو کہہ رہا ہوں نئے جن کے کڈس ہیں اپنے بچوں سے دوستی کی ایسے کیجیے تاکہ ان کو مارکیٹ میں دنیا میں باہر کسی سے دوستی نہ کرنی پڑے اپنے بچوں کو دوست بناؤ اگر آپ ان کی زندگی سدھارنا چاہتے ہو اگر آپ ان کی زندگی میں ڈرگ ایڈکشن باقی وغیرہ گند چیزوں کی طرف نہیں مائل کرنا چاہتے ہو تو ان کو اپنی طرف مائل کیجیے ان میں وہ بیریئر مت رکھیے جو چلتا آ رہا تھا پچھلے زمانے سے کیونکہ ان کے ہاتھ میں سب کچھ ہے آپ کو صرف اپنے بچوں کا دوست بننا ہے تب آپ ان بچوں کو اچھے راستے پہ لا سکتے ہو تاکہ ان کو باہر سکولوں میں کالجوں میں یونیورسٹیز میں کوئی کسی دوست کی ضرورت نہ پڑے اتنی ان کے ساتھ فرینڈشپ بناؤ یہ میں خاص کر پیرنٹس کو کہہ رہا ہوں اور یہ
ये मेरा पहला पॉइंट है, स्टॉप, दोस्त मत बनाइए। और जो मैंने दूसरा पॉइंट मेंशन किया, एक्सपेक्टेशंस, ये सबसे बड़ा ये वर्ड है जिससे इंसान दिन में 1000 बार हर्ट हो जाता है। अगर आप किसी को देना चाहते हो, किसी पे एहसान करना चाहते हो, किसी की जिंदगी में किसी मसाइल को हल करना चाहते हो, तो नेवर रिटर्न, एक्सपेक्ट मत कीजिए कोई रिटर्न में आपसे अच्छा करेगा। अगर आप जब भी आप किसी के साथ अच्छा करोगे, मैं ये लिख के देता हूँ, 110% ये रिसर्च बताता है, 110% ये आज तक की कहानियां जो मैंने पढ़ी है, सुनी है, लिखी है, यही है कि सबसे ज्यादा इंसान को डिप्रेशन और एंजाइटी की वजह एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस किसी, सिर्फ माँ बाप के सिवा, सिर्फ माँ बाप के सिवा किसी पे एक्सपेक्टेशंस मत लगाइए, मत लगाइए, क्योंकि सबसे ज्यादा हर्ट करता है एक्सपेक्टेशंस। आप आंखें बंद करके देख लो, जब भी आप डिप्रेशन में होते हो, रात को, दिन को, काम में, किसी भी जगह एंजाइटी की वजह सिर्फ आपकी एक्सपेक्टेशंस है। मत लगाइए, सिर्फ नेकी कर दरिया में डाल, अच्छा सबके साथ करो, लेकिन कभी मत दिमाग में रखना आपने अच्छा किया कोई आपके साथ अच्छा करेगा, एंड एक्सपेक्टेशंस। और थर्ड पॉइंट मैंने लिखा है, डाउट। सबसे ज्यादा जो हमें परेशान करता है, हम शक करते हैं, कोई दावत पे बुलाए, क्यों बुलाया, उस पे भी डाउट, कोई ना बुलाए उस पे भी डाउट, किसी को कोई आपसे पैसे मांगे, उधार मांगी, उस पे भी डाउट, किसी को पैसे मांगो अगर वो दे देगा तो उसमें भी डाउट, कोई अच्छा पढ़ रहा है, क्यों पढ़ रहा है, उसमें भी डाउट, कोई ना पढ़ रहा है उसमें भी डाउट, कोई किसी को चाहता है उसमें भी डाउट, क्यों चाहता है, कोई ना चाहता है उसमें भी डाउट, क्यों नहीं चाहता है, सबसे वजह। और एक तीसरा पॉइंट मैंने जो लिखा है, डाउट। हमेशा जजमेंटल मत बनिए, किसी को जज मत कीजिए। कोई इंसान चलता है, आप उसके मुतालिक जज करते हो, नेवर जज एनीबॉडी। आप किसी के बारे में नहीं जान सकते कि इसके दिल में क्या है, इसके दिमाग में क्या है, इसकी इनर कॉन्शियस क्या है। नेवर ट्राई टू जज। आपको कोई कहता है वो बंदा खराब है और आप उस पर एक सेकंड में भरोसा करते हो। किसी को जिंदगी में, ये सबसे गुनाह भी है, हम किसी को जज नहीं कर सकते। अगर जज करने वाला है वो सिर्फ अल्लाह ताला है, उसकी जात एक इंसान को जज कर सकती है, क्योंकि वो भी उसको पता होता है जो जो उसके सिर्फ अंदर होता है, जो वो करना चाहता है अभी किया नहीं होता है, वो भी अल्लाह ताला को पता होता है। लेकिन एक इंसान किसी दूसरे इंसान को जज नहीं, उस जज करने से आप डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो जाते हो। नेवर जज। और मैंने जो लास्ट पॉइंट, चौथा पॉइंट, शो ऑफ। माय डियर, कश्मीर से जंग लगो, खाई लगो, सलगो, शो ऑफन। मैं पहले अमीरों की बात करता हूं, हमें पहले अमीर यहाँ पे गलत है, जिनके पास पैसा है वो गलत है। गरीब आप छोड़ो, गरीबों की बात इसके बाद में करता हूं। अमीरों के पास जितना पैसा है उतना वो उसका गलत यूज करते हैं। चाहे किसी की कैपेसिटी है 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख गाड़ी लाने की, वो 15 लाख की लाता है और बैंक से इंटरेस्ट पे पैसे लाता है। लेकिन जो हमारा गरीब पड़ोसी होता है, वो ड्रग एडिक्शन में इन्वॉल्व होता है, ड्रग का बिजनेस करता है, वो कहता है कि मैं इससे बड़ी गाड़ी लाऊं। ये सबसे बड़ी वजह है क्राइम की। मैं और एक मकान बनाता है बड़ा, और हमारा पड़ोसी अगर इसके पास पैसे नहीं हो, हम अननेसेसरी मकान भी बनाते हैं। अगर हमें 1 रूम की जरूरत है हम 10 रूम बनाते हैं, हमें 10 रूम की जरूरत होती है हम 30 रूम बनाते हैं। और हमारा पड़ोसी जिसके पास पैसे नहीं होते, वो गलत चीजों में मुब्तला हो जाता है, गलत चीजों की तरफ माइल हो जाता है। जब हम मकान खड़े करते हैं, फजूल में बड़े बड़े मकान खड़े करते हैं, और जिसके पास पैसा नहीं होता वो क्राइम में मुब्तला होके, इन्वॉल्व होके गलत तरीकों से पैसे हासिल करता है और उन चीजों से मकान बनाता है। दिस इज ये एक वजह है एक स्टेट में क्राइम का, क्योंकि न गरीबों को अपने पैसे यूटिलाइज करना नहीं आता और गरीबों को कमाना नहीं आता। गरीब कमाते गलत तरह से है और अमीर खर्च गलत तरह से करते हैं। मैं यूएस में था, मैंने बहुत सारी जगहों का वीडियो उठाया। अगर मैं आपको 10 साल भी रखूंगा ना किसी जगह, आप मेजर मार्केट को छोड़िए जहां पे वो लोग रहते हैं, एक ही मकान का कलर, एक ही डिजाइन, एक ही कलर, कोई दीवार, कुछ भी नहीं, सिर्फ फुटपाथ और पार्किंग बनाई है और पार्क्स बनाई है उन लोगों ने। आप 50 साल में भी वहां पे डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन अमीर है कौन गरीब है।
अगर आप 20 साल उन पे पीएचडी भी करोगे, रिसर्च करोगे, लेकिन बहुत ही मुश्किल है कि किसके पास पैसे ज्यादा है, किसके पास कम है। अगर यहाँ पे कोई फकीर भी आ जाए जिसके पास दिमाग नहीं होगा, पागल होगा, वो इजिली बता सकता है हमारे मकानों को देख के कौन अमीर है कौन गरीब है। लेकिन उस बंदे को ये नहीं पता कि कितना कर्ज लेके लोगों ने मकान बनाए हैं, जमीन बेच के मकान बनाते। बदकिस्मती से मैंने लोगों को जमीन बेच के मकान बनाते हुए देखा है। माय डियर, दिस इज अ प्राइमरी सेक्टर। अगर आप लोगों ने अपनी रिसोर्सेज को खत्म किया, आने वाली जनरेशंस हमारी क्या करेगी, हमें कितनी बद्दुआएं लगेंगी अगर हम माँ बाप के कब्रिस्तान पे जाते हैं मगफिरत मांगने के लिए, लेकिन वो लोग हमारी कब्रों पे गालियां देने आ जाएंगे अगर हमने इसी ट्रेंड को कंटिन्यू रखा। माय डियर, शो ऑफ को स्टॉप कीजिए, लाइफ को सिंपल बनाइए और एक दूसरे की मदद कीजिए, एक दूसरे की मदद कीजिए। इसीलिए इंसान को बनाया गया है। अब मैं फिर से रिपीट करता हूं, ये 4 चीजें जिनसे आपकी डिप्रेशन खत्म हो जाएगी, एग्जाइटी खत्म हो जाएगी। डोंट मेक फ्रेंड्स एंड एक्सपेक्टेशंस, stop judging anyone, and third, judgment, never judgment anyone, किसी के बारे में जजमेंट मत कीजिए। और शो ऑफ के लिए जो अपने आप को जिंदगी में जंग लगाते हो, कर्ज लेके, वो लेके, जमीन बेच के हम दूसरे को दिखाएंगे कि हम अमीर है, ये सबसे बड़ी वजह है डिप्रेशन का। बड़े बड़े मकानों में बैठे हैं लेकिन शाम को सुकून नहीं है, अच्छा खाने को नहीं है, अच्छी गाड़ी नहीं है, अच्छा पहनने को नहीं है, लेकिन मकान बड़े बड़े बनाए हैं। माय डियर, मकानों में सुकून नहीं है। अगर आप अपने आप पे इन्वेस्टमेंट करोगे, अपनी स्किल्स पे रिफाइनमेंट करो, अपने बच्चों को एजुकेशन ऐसे दे दो, अपने बच्चों को डिफरेंट एजुकेशन दे दो, क्योंकि हम जिस इरा में जा रहे हैं दैट्स वेरी वेरी टफ, क्योंकि एआई का जमाना आ रहा है, रोबोटिक्स का जमाना आ रहा है, कंप्यूटर विजन टेक्नोलॉजी का विजन आ रहा है। हमें बच्चों को कैसे इनकी ट्रेंड चेंज कीजिए पढ़ाने की, और पर्टिकुलरली मैं आपसे कह रहा हूँ इनको मॉरल वैल्यू दीजिए। कम से कम बेटियों को आप मॉरल वैल्यू दीजिए, ताकि हमारे इस परिवार में जिया अखबार अगर इस इवन बेटियां दिमाग मॉरल वैल्यूज सबसे। मैंने पिछली वीडियो में इस पे जाना नहीं चाहता, मैं आपका टाइम नहीं खाना चाहता, लेकिन अपने बच्चों को मॉरल वैल्यू, इनको पहले ही जो किताबें पढ़वाइए, नेवर टेल अ लाई, ग्रेटिट्यूड इनको पढ़वाइए, ग्रेटिट्यूड क्या होता है, इनको हेल्प अदर्स, ऐसी किताबें इनको पढ़ाइए ताकि ये इंसान बने, न कि ये हैवानों की तरह आने वाली जिंदगी गुजारे। माय डियर, कीप इट अप। मुझे पूरा यकीन है आप इस वीडियो को पसंद जरूर करोगे। मैं अहमद मुश्ताक, आऊंगा मैं आपके पास फिर कुछ अच्छी बातें लेके। खुदा हाफिज, टेक केयर।